بھائیوں، جب میں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات آپ کو سنائی تو میں یاد کرتا ہوں اپنے دوست محمد رضوان کو، جس کا نیا نام راجیش ہوتا ہے۔ وہ راجیش نامی آدمی جب وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ مسلمان کیسے ہوا یہ بھی ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ ہمارے مہاراج جی شیام سندرم شیو آشرم مٹھ کے مہاراج، جن سے میں نے وید پران، رامائن، مہا بھارت اور سنسکرت کی ساری کتابیں پڑھی، سنسکرت کو زبان کی حیثیت سے انہوں نے مجھ کو پڑھایا کہ بیٹا پڑھ لو، اب اس کے بعد کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ اور تمام تر علماء کرام کا اس دنیا سے اٹھ جانا، اور تمام تر جتنے بھی سچے لوگ ہیں، اللہ رب العزت ان کو دھیرے دھیرے کر کے ایک طرف سے سب کو اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ کو پڑھایا، وہ بھی ایک معاملہ ہے۔ راجیش نامی میرے دوست جن کا نیا نام رضوان تھا، میں نے کہا بھائی تو نے اسلام تو قبول کر لیا، ایک ہی آشرم میں ہم دونوں آدمی رہتے تھے۔ میرے مہاراج شیام سندرم شیو آشرم مٹھ کے مہاراج ویکا سنگھ برہمچاری کے ساتھ میں راجیش نام کو وہ لڑکا مسلمان ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر تو کسی طریقے سے وہ بڑھئی تھا، کارپینٹر تھا، وہ کاٹ مستری تھا، تم گاؤں میں کام کرتے ہو، وہاں پر تو تم نماز پڑھ لیتے ہو، لیکن جب تم اپنے گھر میں جاتے ہو تو تم وہاں پر کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مولانا ہم وہاں پر دوسرے گاؤں میں جب کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں، مسلم محلوں میں ہم جاتے ہیں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر میں آتے ہیں، رات میں واپس آتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے آتے ہیں، فجر کی نماز کا مسئلہ میرے لیے رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ بتا کہ فجر کی نماز تو کیسے پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے غسل تو میں نے 3-4 دن تک کیا، جب میں نیا مسلمان بنا تھا غسل تو 3-4 دن تک کیا، لیکن غیر مسلم بھائیوں میں رات کو غسل کرنا ایک بہت بڑا، یہ سمجھ لیجئے کہ تعجب کی بات اس کو سمجھا جاتا ہے کہ رات میں یہ آدمی 4 بجے رات میں اٹھ کر کے غسل کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں کیا کیا وہ تو بتا۔ کہا کہ میں نے 3-4 دن تک غسل کر لیا، اور اس کے بعد تو پھر ایک دن مجھ کو ہماری کچھ جس کو بھابھی ہم لوگ بولتے ہیں، بھابھیوں نے دیکھ لیا، انہوں نے محلے میں اعلان کر دیا کہ یہ روزانہ رات کو نہاتا ہے، یہ نہاتا کیوں ہے؟ اس کے نہانے پر کوئی آدمی گرفت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بددین ہو گیا، یہ ادھرم ہو گیا۔ اس کے بعد تو پھر ان لوگوں نے پورے محلے میں شور مچا دیا۔ مجھ کو بلا کر کے گاؤں کے پنڈت نے پوچھا کہ کیا تم نے اسلام دھرم کو سویکار تو نہیں کر لیا ہے؟ کیا تو ادھرم تو نہیں ہو گیا؟ یہ تو مسلمان ہی ہے جو رات کو اٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ مسلمان ہی ہے جب پوری دنیا سوتی ہے اس وقت میں عالم ناسوت میں موت طاری ہو جاتی ہے، ایک مؤذن مسجد سے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اس عالم ناسوت کی خاموشی کو توڑ دیتا ہے، اور ایک مسلمان ہے جو اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، پوری دنیا سوتی ہے۔ ایک خوب سا عالم، ایک خوب سا ہوتا ہے، ایک درد سا دل میں اڑتا ہے، ایک خوب سی اڑتی ہے، ایک درد سا دل میں پیدا ہوتا ہے، اور راتوں کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے۔ یہ صرف مسلمان کی صفت ہے کہ مسلمان جب نماز کے لیے اذان سنتا ہے تو راتوں کو اٹھ کر کے پوری دنیا سوئی نہیں رہتی ہے، لیکن ایک مسلمان جس کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے وہ اٹھ کر کے، اگر اس کو غسل کی ضرورت ہے، اسنان گرہن کرنے کی ضرورت ہے، وہ اٹھ کر کے سب سے پہلے شدھ ہوتا ہے۔ ادرگا تراڑی شدھنتی منہ ستین شدھتی ودیا تپوبھیام بھوتاتما بدھی جانن شدھتی۔ وہ جانتا ہے کہ ہم کو یہ جل سے شدھی پراپت ہوتی ہے، اور یہ جل ہی سے ہم آپن کرتے ہیں، اور اس کے بعد تب پھر ہمارے نظروں کی شدھی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان اٹھ کر کے رات میں وضو کرتا ہے اور وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔ تو کہا کہ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ لوگوں نے جب جان لیا تم نے کیا کیا؟ کہا کہ تب پھر مولانا ہم نے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، اپنے آپ پر کنٹرول کیا، اپنے آپ کو قابو میں کیا۔ بیوی بچوں سے ہم الگ کر کے سوتے تھے، الگ ہو کر کے سوتے تھے۔ اور میں نے کہا فجر کی نماز اس کا مطلب تم نے نہیں پڑھی؟ کہا کہ ہاں فجر کی نماز پڑھی۔ کہا کیسے پڑھی؟ کہا کہ پہلے تو ہم چپکے سے اٹھ کر کے کونے میں جا کر کے پڑھ لیتے تھے، لیکن جب لوگوں کو یہ پتا پڑ گیا کہ یہ فجر کی یہ نماز پڑھتا ہے، اٹھا کے بیٹھک کرتا ہے، یہ اٹھا کے بیٹھک کرتا ہے، تو اس کے بعد تو پھر ہم نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کیا بیٹھ کر پڑھا؟ کہا کہ بیٹھ کر پڑھتے تو پھر بھی شک ہو جاتا۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کہ ہم چت لیٹ کر کے کبھی
पट लेट करके हमने नमाज अदा की, हमने नमाज नहीं छोड़ी। जब ये मामला आगे बढ़ा, गांव के तमाम पंडितों ने जब ये मालूम कर लिया कि ये वाकई पक्का ये मुसलमान बन चुका है, तो लोगों ने उसको एक मरतबा मारने के लिए दौड़ना शुरू किया। वो जा करके जो गांव का सबसे बड़ा मंदिर था, जो सबसे बड़ा मंदिर था, उस मंदिर में जा करके वो बंद हो गया और अंदर से दरवाज़ा लगा लिया। वहाँ एक पुरोहित बैठा हुआ था, उसको ये खबर थी कि ये आदमी ये मुसलमान हो चुका है, अपने धर्म को छोड़ दिया है। वो आदमी ने, उस पुरोहित ने, उस पुजारी ने, उस पंडित ने उसको मंदिर से निकालना चाहा कि तू यहाँ से निकल जा। कहा कि हम नहीं निकलते हैं। कहा कि मामला क्या है? कहा कि सब लोग दौड़ाने के लिए दौड़ाया तमाम लोगों ने, हम मंदिर में आ गया और आप भी हमको दौड़ाओगे तो हम भाग करके कहाँ जाएंगे? तमाम गांव वालों ने मंदिर को जाकर के घेर लिया। अब देखिए, जब चारों तरफ से दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब अल्लाह ताला एक दरवाजा खोलता है। आपने देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जुलेखा ने अपने दामे फरेब में गिरफ्तार करना चाहा, उनको फरेब की दावत दी, बदकारी की दावत दी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जुलेखा ने तमाम तर दरवाजों को बंद कर लिया। लेकिन कुरान पाक कहता है उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने लौला अर्रा बुरहान रब्बी, उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम को अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बाप, तब तारीख में आता है, तफसीर में आता है, उस वक्त में आपको एक निशानी नजर आई। आपको हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का पूरा चेहरा नजर आया और आपने देखा कि याकूब अलैहिस्सलाम अपने दांत में इस तरह उंगली दबाए हुए हैं कि बेटा तू क्या कर रहा है। ये देखा, कोई खास निशानी देखी। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम वहां से भागे और जुलेखा ने तमाम तक दरवाजों को बंद कर दिया था, मुकफ्फल कर दिया था, ताला लगा दिया था। तारीख बताती है, तारीख तफसीर बताती है, जब वहां से आप यूसुफ अलैहिस्सलाम उल्टे पैर भागे तो एक तरफ से जिस दरवाजे के पास गया, दरवाजा पट पट खुलता चला गया, वहां पर रास्ता मिलता है। जब मंदिर का दरवाजा बंद हो गया, गांव वालों ने चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि उस वक्त खुदाई मदद मेरे साथ में आई। हदीस पाक में है, अगर तुमको जला भी दिया जाए, आरी से चीर भी दिया जाए, लेकिन शिरक मत करना। कोई तुमसे शिरक करने के लिए कहे तो शिरक मत करना। उस वक्त में कहा कि फिर क्या हुआ? कहा कि हमारे पुरोहित ने तमाम लोगों को समझाया, माइक लिया, तमाम लोगों को समझाया कि आज तमाम लोग खामोश हो जाइए, हम इसको फिर दोबारा घर वापसी ला रहे हैं। मेरे राजेश भाई ने कहा पहले मेरी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम जो कहोगे हम कर लेना। तो उस पुरोहित ने कहा हम घर वापसी कर रहे, हम इसका शुद्धिकरण कर देंगे मंदिर में। शुद्धिकरण करने का मतलब यह हुआ कि जितने भी लोग मुसलमान हुए हैं, एक बहुत बड़ी तहरीक आज ये समाजियों ने चलाई, ये शुद्धिकरण की तहरीक। ये ज्यादातर ये तहरीक अलीगढ़ में, हाथरस में, आगरा में, आगरा के जो सरहदी इलाके हैं वहां पर यह तहरीक सबसे ज्यादा कामयाब हुई। तमाम लोगों को उन्होंने, जितने भी मुसलमान थे, उन मुसलमानों के पास जा जा करके कहा कि देखो भाई, तू मुसलमान नहीं, तू हिंदू है, तू हिंदू था, हिंदू है। और हिंदू होने की दलील सबसे बड़ी यह है कि तुम जब पैदा होते हो तो तुम हिंदू बन करके पैदा होते हो, इस दुनिया में तुम्हारी मुसलमानी होती है। ये देखिए, उनको ये नहीं पता, हमारे हिंदू भाइयों को ये नहीं मालूम कि खतना करना सुन्नत है। अगर कोई आदमी खतना नहीं करता है मुसलमानी, उसको मुसलमानी नाम रख दिया। हम लोगों ने सुन्नत भी नाम नहीं रखा उसका। ये जो सुन्नत करते हैं हम लोग, उसका नाम भी बदल दिया, सुन्नत नहीं रखा, बल्कि सुन्नत को तारीफ कर दिया, सुन्नत को मुकम्मल बदल दिया और सुन्नत को क्या बना दिया? कुलैया बिरादरी ने सुन्नत बना दिया। अब ये देखिए, सुन्नत होता है कि सुन्नत होता है। ये सुन्नत का मजाक है, ये दीन का मजाक है, ये हदीस का मजाक है कि आप सुन्नत को सुन्नत पढ़ लें। ये कहाँ से आया? उस वक्त में मेरे राजेश भाई ने कहा कि भाई ये बात बताइए आप, अगर मैं कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ूं और कुछ आयतें हिंदू मजहब में से पढ़ूं, कुछ ऋचाएं, कुछ मंत्र, कुछ श्लोक वहां से पढ़ूं, तो क्या आप मेरी बात को मानेंगे? कहा कि सुनाओ, तुम क्या सुनाना चाहते हो? जो हिंदू मजहब में है और वो मुसलमान में भी है, सुनाओ तुम क्या सुनाना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मेरे महाराज जी ने उनको काफी ट्रेनिंग दी थी, चूंकि मेरे महाराज जी, अल्लाह उनकी कब्र को
نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ میرے مہاراج کو وہ مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ حق دونوں آدمی موجود تھے، کہا کہ مصور یہ بتاؤ کہ کیا تم ہی لوگ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتے ہو؟ صرف قرآن پاک میں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے یا پھر کہیں اور بھی ہے جس کو تم لوگ نہیں جانتے ہو اور تمہارے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو یہ غیر مسلم بھائی نہیں جانتے ہیں؟ میں نے کہا مہاراج جی صرف قرآن پاک میں اور اسلام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے۔ تو میرے مہاراج جی بہت ذہین آدمی تھے، بہت ہی ذہین آدمی۔ انہوں نے کہا اگر صرف قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، اس کا مطلب جتنے بھی آسمانی صحیفے اس سے پہلے آئے، جتنے بھی پوتر گرنتھ کا مقدس صحیفوں کا آسمان سے نزول ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں اللہ کا نام نہیں ہے، صرف اسی میں ہے۔ میں نے کہا مہاراج کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم سنسکرت جانتے ہو، تم وید کا سب سے پہلا منتر اٹھاؤ۔ 4 وید ہیں، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رگ وید، اتھروید، سام وید، یجروید، اور چاروں ویدوں میں سب سے پردھان، سب سے قدیم، سب سے مستند، سب سے پراچین وید رگ وید کو مانا جاتا ہے۔ اور کہا کہ رگ وید کو اٹھا کر کے لاؤ۔ شری رام آچاریہ شرما جی کا اس میں انواد تھا، تاکہ یہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلا منتر رگ وید کا سب سے پہلا منتر جب شروع ہوتا ہے، سب سے پہلا منتر، وہاں پر ایک پروہت ہیں، ایک پنڈت ہیں، اور دوسرے ہمارے راجیش بھائی جس کا نیا نام رضوان ہے۔ اب یہ بات تو چونکہ ٹریننگ میں ہم لوگوں کو پہلے مل گئی تھی کہ رگ وید کا پہلا منتر اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ میرے مہاراج نے کہا کہ یہاں پر اوم اگنی میلے، اوم یہ ہر جگہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اوم 3 لفظوں سے مل کر کے بنتا ہے میرے بھائیوں، 3 لفظوں سے مل کر کے بنتا ہے۔ کوئی بھی حروف تہجی اکیلا نہیں ہوتا ہے، جیسے سنسکرت میں کوئی بھی لفظ اکیلا نہیں ہوتا ہے، اور اسی طرح عربی میں بھی کوئی لفظ اکیلا نہیں ہوتا ہے، انگلش میں بھی کوئی لفظ اکیلا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی الف بولتا ہے، الف ہے، لام ہے، فا ہے، 3 لفظوں سے مل کر کے لفظ الف بنا۔ اسی طریقے سے اے ہے تو یہاں پر بھی 2 لفظ ہے، اسی طریقے سے ک ہے تو ک بھی اکیلا نہیں ہے، آدھا ک بیچ میں جوڑ ہے، اس کے بعد ا ہے، تب جا کر کے ہوا یہ ک۔ کھ آدھا کھ بیچ میں جوڑ، اس کے بعد ا، تب جا کر کے ہوا آ۔ تو یہاں پر ا، او اور ما 3 لفظ ہیں، اکارنچا، اکارنچا، نکارنچا، پرجاپتی۔ چونکہ قرآن پاک میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو، آج میں نے تمہارے وہ طریقے کو، جس طریقے کو چل کر کے تم کو نجات مل جائے گی، وہ راستہ جس راستے پر چل کر کے تمہاری مغفرت ہو جائے گی، تمہاری بخشش ہو جائے گی، اور وہ دروازہ جس دروازے میں داخل ہونے کے بعد تم معاف کر دیے جاؤ گے، وہ دروازہ میں نے مکمل کر دیا ہے، وہ راستہ میں نے صاف کر دیا ہے، اور وہ طریقہ میں نے تمہارے لیے واضح کر دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب دوسرے دین کے بارے میں مت سوچنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری جو نعمت تھی، میرا جو تم پر احسان کرنا تھا، میں نے اپنا احسان بھی مکمل کر دیا، میں نے اپنی نعمت بھی مکمل کر دی، اور تمہارا دین بھی مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے جس دین کو ہم نے چنا، تمہارے لیے جس دین سے ہم راضی ہوئے، جس دین پر چلو گے اور جس راستے پر چلو گے، جس راستے سے ہم راضی ہوں گے، جس دین سے ہم راضی ہوں گے، وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یاد رکھنا میرے بھائیو، اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی سکہ رائج الوقت ہے، اللہ کی نگاہ میں اگر کوئی سکہ چلے گا، وہ صرف اسلام کا سکہ چلے گا، باقی سارے سکے کھوٹے ہوں گے۔ اگر کوئی راستہ جس راستے پہ چل کر کے مکتی ملے گی، وہ صرف اسلام کا راستہ، باقی سارے راستے جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے
के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, अगर कोई आदमी मुसलमान है, ईमान वाला है, मस्जिद वाला है, अल्लाह वाला है, किताबुल्लाह वाला है, रसूलुल्लाह वाला है, अल्लाह से सच्चा इश्क करता है, किताबुल्लाह से मोहब्बत करता है, मन तशब्बह बिकौमिन, अगर वो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, किसी कौम की शक्ल सूरत इख्तियार करता है, किसी कौम का लाइफ स्टाइल अगर वो चुनता है, फहुव मिनहुम, उसका हश्र उन्हीं लोगों के साथ में होगा, यानी वो जहन्नम में जाएगा तो ये भी आदमी जहन्नम में जाएगा, अगर वो गड्ढे में गिरेगा तो ये भी आदमी गड्ढे में गिरेगा। इसलिए कि इस्लाम ही अल्लाह की निगाह में सबसे ज्यादा महबूब दीन, इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और दूसरी जगह फरमाया, वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, अगर कोई आदमी दीन इस्लाम को छोड़ करके, मजहब इस्लाम को छोड़ करके दूसरा दीन अपनाता है, दूसरा रास्ता अपनाता है, आखिरत में वो सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वालों में से होगा। अकारणचा उकारणचा मकारणचा प्रजापति मनु संहिता दूसरा अध्याय 76वां श्लोक। ये मनु संहिता, जिस मनु संहिता को, जिस मनुस्मृति को हिंदुस्तान के एक एक मदरसे में, एक एक गलियों में, एक एक घर में मनु जी के संविधान को लागू करना चाहते हैं। जो ये गैर जितने भी हमारे लोग हैं, ये जितने भी ये बदतमीज और बहुत ज्यादा मुतशद्दिद किस्म के लोग हैं, ये जो दाखिल करना चाहते हैं, वही मनु संहिता कहती है अकारणचा उकारणचा मकारणचा प्रजापति। हमारे राजेश भाई ने कहा, देखो जहां पर पहला मंत्र शुरू होता है, वेद का कोई भी मंत्र शुरू होता है वो ओम से शुरू होता है। ओम 3 लफ्जों से मिलकर के बना है, अकारणचा उकारणचा मकारणचा प्रजापति। अकारणचा का मतलब हुआ जगत की सृष्टि करने वाला, यानी दुनिया को बनाने वाला। उकारणचा का मतलब हुआ दुनिया का पालन पोषण करने वाला, यानी पालनहार खुदा। और मकारणचा का अर्थ हुआ दुनिया को तबाह हो बर्बाद कर देने वाला। अकारणचा उकारणचा मकारणचा प्रजापति। प्रजा कहते हैं गुलाम को, प्रजा कहते हैं बंदों को, प्रजा कहते हैं जनता को, प्रजा कहते हैं मखलूक को। चल अचल जितनी भी प्राणी है, जो चल है चलती हुई प्राणी है, जो अचल है जो चल नहीं रही है, पहाड़ पेड़ पौधे पत्थर, ये सब के सब उसी मालिक के मोहताज है। अल्लाह के 3 सिफत को, यानी खुदा अकारणचा जो बनाने वाला है, उकारणचा जो पालन करने वाला है, मकारणचा जो तबाह बर्बाद कर देने वाला है। खुदा के ये 3 गुणवाचक नाम है। तीनों सिफात को एक ही जगह ला करके जमा कर दिया। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह है, अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह बहुत ही रहम वाला है। अल्लाह है, रहमान एक सिफत, रहीम एक सिफत। अल्लाह के 2 गुणवाचक नाम उसके साथ में मिल गए, 2 सिफाती नाम मिल गए। इसका मतलब ये नहीं अल्लाह अलग है और रहमान अलग है और अर्रहीम अलग है, तीनों एक ही खुदा के नाम है। अकारणचा उकारणचा मकारणचा प्रजापति एको देवः सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमं मातृश्वानमाः। एको देवः, खुदा तो बस एक है। हमारे राजेश भाई की तकरीर शुरू हुई, खुदा तो एको देवः सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमं मातृश्वानमाः। खुदा तो एको देवः, देव एक खुदा एक है, सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमं मातृश्वानमाः। खुदा तो बस वही एक है, उसी को लोग अग्नि के नाम से जानते हैं और उसी को लोग मातृश्वान के नाम से जानते हैं, और वो सबसे ज्यादा महान है, सबसे बड़ा है। इसलिए एको देवः सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमं मातृश्वानमाः। और उसके बाद ओम अग्नि मिल्ले। अग्नि किसको कहते हैं? अग्नि अग्रणिर् भवति, जिस खुदा का नाम सबसे पहले लिया जाता है उस खुदा को अग्नि कहा जाता है। उसके बाद वेद का पहला मंत्र ओम अग्नि मिल्ले, वो खुदा जो कि उपास्य है, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। माईड्य भिन्न परमेश्वर, परमेश्वर से दुतो नवाशंसः, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब देखिए, संस्कृत सिर्फ जुबान का फर्क है, सिर्फ जुबान का फर्क है। अगर कोई आदमी संस्कृत जानता है, अगर कोई आदमी अरबी जानता है, अरबी ने उस आदमी ने कहा जी बिल मा,
जी बिलमा। ये अंजुमन का प्रोग्राम है, तलबा की अंजुमन जो थी, तलबा प्रोग्राम करना चाह रहे थे, उसी प्रोग्राम को आप तमाम हजरात ने, गांव वालों ने थोड़ा सा वुसअत दिया और उसके बाद इतना बड़ा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। अरबी बोलने वाला क्या कहेगा? जी बिलमा, पानी लाइए। एक गिलास पानी चाहिए तो वो कहेगा जी बिलमा, पानी लाओ। और उसके बाद तो फिर दूसरा आदमी जो अंग्रेजी जानता है वो कहता है गिव 1 गिलास वाटर, गिव मी 1 गिलास वाटर, मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए आप। और उसके बाद उसी को फारसी में कहिएगा, आग का माना पानी होता है, संस्कृत में जाइएगा नीर का माना पानी होता है, हिंदी में जाइएगा जल का माना पानी होता है। क्या जुबान के बदलने से, भाषा के बदल जाने से क्या अल्लाह का, क्या पानी का रंग भी बदल गया? नहीं नहीं, नहीं बदला। यही वजह है कि जब ये रामायण, रामचरितमानस के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, जो कि तकरीबन तमाम तर हमारे पढ़े लिखे हिंदू भाइयों के घर में होगा, रामचरितमानस जिसको कि रामायण के नाम से जानते हैं, जब तुलसीदास जी ने इसकी रचना की, वो तुलसीदास जी जिन्होंने कहा था काशी करवट बाध है सब काम, बैकुंठ वास न पइयो बिना मोहम्मद नाम। देखो काशी में जाना, जो रामायण रामचरितमानस का रचनाकार यानी उसके मुसन्निफ और राइटर श्री तुलसीदास जी वो कहते हैं काशी करवट बाध है सब काम, बैकुंठ वास न पइयो बिना मोहम्मद नाम। मेरे भाइयों, तुम काशी भी जाना और उसके बाद तो फिर तुम तमाम तर पहाड़ों का चक्कर लगा लेना। काशी करवट बाध है सब काम, बैकुंठ वास न पइयो बिना मोहम्मद नाम। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो मोहम्मद के नाम को जपना पड़ेगा और कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो रामचरितमानस के रचनाकार श्री तुलसीदास जी जब रामायण को लिखते हैं तो सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करते हैं, अल्लाह की तारीफ। चूंकि वो एक जुबान दूसरी जुबान है, वहां पर वो कहते हैं बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल भोगी, बिन बाणी बक्ता बर जोगी। खुदा कौन? बिन पद चले सुने बिनु काना, वो खुदा जिसके बारे में वेद ने कहा ओ मग्नि मिल्ले, जो खुदा हमारा खालिक है, जो खुदा हमारा मालिक है, जो खुदा हमको मौत देता है, उस खुदा की तारीफ करते हुए रामायण में लिखा है बिन पद चले सुने बिनु काना। अरे लोगों, तुम खुदा को कहाँ तलाश करते हो? तुम कहाँ ढूंढते हो? तुम किस मंदिर में खुदा को तलाश करते हो? तुम किस पत्थर में खुदा को तलाश करते हो? तुम किस आग में खुदा को तलाश करते हो? तुम किस सांप और बिच्छुओं में खुदा को तलाश करते हो? तुम कहाँ कहाँ खुदा को ढूंढते फिरोगे? बिन पद चले सुने बिनु काना। खुदा तो वो है जिसके पैर नहीं है लेकिन उसके बावजूद वो चल रहा है, पूरी दुनिया को चला रहा है। खुदा तो हुआ है बिन पद चले सुने बिनु काना। खुदा के कान नहीं, हमने नहीं देखा खुदा के कान है कि नहीं है, लेकिन वो कैसा है बस सिर्फ इतना हम मुसलमानों का अकीदा है, लैस कमिस्लिही शै, उस जैसा कोई भी नहीं है। वह समीउल बसीर, वो सुनने वाला है और देखने वाला है। ये रामचरितमानस के रचनाकार लिखते हैं बिनु पद चले सुने बिनु काना। खुदा के पैर नहीं है लेकिन पूरी दुनिया को चला दिया, सूरज का पैर नहीं है लेकिन सूरज को भी चला दिया, चांद के पैर नहीं, चांद को भी चला दिया। और कितने जानवर ऐसे हैं जिसके पैर नहीं है लेकिन सबको चला दिया। ये चलाने वाला जो है वही खुदा है। ये मैं नहीं कहता, कुरान नहीं कहता, हदीस नहीं कहती, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा। मेरे हिंदू भाइयों, अगर तुम्हारे कानों में मेरी आवाज जा रही है तो उस खुदा की तारीफ करते हुए सुन लो कि श्री तुलसीदास जी कहते हैं बिन पद चले सुने बिनु काना। खुदा के पैर नहीं है लेकिन वो सबको चला रहा है और वो चल रहा है। जब हवा चलती है हम महसूस करते हैं कि खुदा है। जब ये सैलाब आ जाता है, महाकल्याणकारी में सैलाब आता है, तो हम समझते हैं कि हाँ खुदा है। और सुने बिनु काना, खुदा के कान नहीं है लेकिन वो सबकी बातों को सुनता है, बेजुबान की बात को सुनता है। एक गूंगा आदमी क्या कहता है वो उसको सुनता है, और एक दूध पीता बच्चा क्या कहता है। जिस तरह माँ एक दूध पीते बच्चे की भूख
को वो महसूस कर लेती है, उसी तरह खुदा भी महसूस करता है, खुदा भी सुनता है, उस बच्चे की बात को भी सुनता है जिस बच्चे के मुंह में जुबान नहीं है और वो बच्चा बोल नहीं सकता है। बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म कराए बिनु नाना। खुदा के हाथ नहीं है, लेकिन उसने देखिए कैसे कैसे काम कर रखे हैं। लाखों अरबों करोड़ों कई लाख कई अरब इंसानों की पैदाइश हो चुकी और ता कयामत होती रहेगी, लेकिन किसी का अंगूठा किसी से आज तक नहीं मिला, किसी का मस्तिष्क रेखा किसी से नहीं मिला, किसी का पद रेखा किसी से नहीं मिला, किसी का हस्त रेखा, ये जो हृदय रेखा है और दूसरी तमाम तर रेखा है, ये किसी की रेखा किसी से नहीं मिलती है। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कितनी बाबरकत है ज़ात और कितना सुंदर वो रचनाकार है, कितना सुंदर रचनाकार है। हिंदुओं को भी समझा दिया, मुसलमानों को भी समझा दिया, ये सारे के सारे इंसान ये सब आदम की औलाद हैं। हकीम जायसी का नाम हमने सुना होगा। अगर कोई काफिर है, कोई गैर मुस्लिम है, काफिर का मतलब ये हुआ वो ईश्वर को नहीं मानता है, वो सत्य धर्म को नहीं मानता है, सच्चाई को नहीं मानता है, इसलिए उसको काफिर कहा जाता है। काफिर का मतलब ये नहीं कि जो आदमी ये हिंदुओं का दुश्मन हो वो काफिर है, वो तो काफिर है ही, इसलिए कि सत्य से दूर है। अगर वो सत्य से दूर नहीं होता, अगर वो सच्चाई को मानता तो मुसलमानों से आज वो दुश्मनी नहीं करता। और मुसलमान भी अगर अल्लाह के पैगाम को, ईश्वर के संदेश को, रसूलुल्लाह के पैगाम को अगर उन तक पहुंचा दिया होता, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वो सहाबे किराम से कहा था, देखो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हो, मेरे पैगाम को अगर एक भी पैगाम तुमको मालूम है तो तुम मेरे दूसरे भाइयों तक पहुंचा देना जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अला फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, देखो जितने भी मौजूद हो तुम उन लोगों तक पहुंचा देना। शेख तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। खुदा के हाथ नहीं है, लेकिन कैसी कैसी रचना है उन्होंने की है, कैसे कैसे काम किए हैं। एक ही जगह में उन्होंने बहुत तरह के फल उगा दिए। अगर उसमें अगर इंसान का हाथ होता तो देखो सबके स्वाद अलग, सबके मजे अलग। अंगूर उगता है, सेब उगता है, एक ही जगह में एक ही खेत में मिर्च की खेती होती है, मिर्च कड़वी हो जाती है, और उसी खेत में शकरकंदी की खेती होती है और शकरकंद आलू मीठा हो जाता है। ये कौन करने वाला है? बिन पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी खुदा के मुंह नहीं है, लेकिन उसने तमाम तर रसों को बना लिया, तमाम तर स्वाद को उन्होंने बना लिया। अंगूर खा करके देखिए वो खट्टा होता है, सेब खा करके देखिए वो मीठा होता है, और उसी तरह तमाम तर फलों को आप गिनते चले जाइए, जहां तक जाइएगा जहां पर इंसान की अक्ल खत्म हो जाती है वहां पर अल्लाह की बात शुरू होती है, वहां पर अल्लाह शुरू होता है। अरे इंसानों, अल्लाह को मान लो। ये सारे के सारे इंसान हम सब आदम की औलाद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। वसुदेव कुटुंबकम अल खल्क़ इयालुल्लाह, ये जितने भी लोग हैं ये सब अल्लाह के परिवार हैं, ये अल्लाह के बनाए हुए हैं। बस अल्लाह की बात को मान लो। किसी को देख करके हंसना नहीं है, किसी को देख करके घृणा नहीं करना है, किसी को देख करके नफरत नहीं करनी है। अगर कोई आदमी इस्लाम से दूर है तो वो इस्लाम से दूर है, उसकी दूरी को लेकर के नफरत करना है, लेकिन उस आदमी से हमको मोहब्बत करना है। और किसी को देख करके हंसने वाला ये कभी भी फलाह नहीं पा सकता। हकीम जायसी एक बहुत बड़े हकीम गुजरे हैं, जायस के रहने वाले थे। रायबरेली के आसपास में एक गांव है, वो एक गांव था, बहुत बड़े दानिश्वर, बहुत बड़े फलसफी, बहुत बड़े अक्लमंद, बहुत बड़े राइटर। उनके बारे में कुछ लोगों को पता पड़ा कि वो बहुत बड़े दानिश्वर हैं, बहुत बड़े इल्मदां हैं, तो उनसे मुलाकात करने के लिए एक टीम आई उनके गांव में। आकर के हकीम जायसी के सामने में खड़ी हो गई वो टीम। हकीम जायसी जो है वो पतले दुबले थे और निहायत ही काले थे। उन लोगों ने, उस टीम ने ये तसव्वुर कर लिया था कि हकीम जायसी नाम का जो आदमी होगा बड़ा खूबसूरत होगा और बहुत ही सुंदर होगा, लंबा कद होगा, मोटे तगड़े होंगे, बारोद चेहरा होगा। लेकिन जब वहां पर वो पहुंचे हैं तो हकीम जायसी को देख करके, उनके काले खोलों के चेहरे को देख करके, उनके दुबलेपन को देख करके वो पूरी टीम में जितने भी लोग थे वो सब हंस पड़े। हकीम जायसी ने कहा
काहे पे हसद हो, काहे पे हसद हो, माटी पे हसद हो कि कुम्हार पे हसद हो। कितनी बड़ी बात कही। माटी पे हसद हो कि कुम्हार पे हसद हो। किस पर हंस रहे हो, माटी पर हंस रहे हो कि या कुम्हार पर हंस रहे हो? अल्लाह पर हंस रहे हो कि अल्लाह की तख्लीक पर हंस रहे हो? अल्लाह पर हंसते हो कि अल्लाह के बंदों पर हंसते हो जिसको खुदा ने अपने हाथ से बनाया? किस पर हंस रहे हो? हम किसी की हंसी ना उड़ाएं, बस अल्लाह ने हमको जो पैगाम दिया है उस पैगाम को वहां तक लेकर के हम पहुंच जाएं। हम पहली बार ठाकुर बाड़ी मंदिर में एक प्रोग्राम हुआ, वहां जाकर के हमने ये बात कही कि ये सारे के सारे इंसान एक परिवार है और श्री कृष्ण जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मैंने बताया कि इस बीच में जितने भी मनु हुए हैं, मनु का मतलब होता है पैगंबर, रसूल, नबी, जितने भी मनु हुए हैं उन तमाम मनुओं पर ईमान लाना, जितने भी पैगंबर हुए हैं उन तमाम पैगंबरों पर ईमान लाना एक मुसलमान के अकीदे में शामिल है। अगर कोई पैगंबर है उसको वो नहीं मानता है तो वो मुसलमान नहीं है। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिही आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुअमिनून आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। हमने ईमान लाया अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, तमाम रसूलों पर। हम तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं। उन तमाम रसूलों में एक नबी जिसके बारे में हमने पढ़ा, मेरे महाराज जी ने मुझको पढ़ाया, वो है श्री कृष्ण जी। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान में अगर आप उनकी तालीम को देखेंगे, हिंदुस्तान में ठाकुर बाड़ी मंदिर में हमने कहा कि श्री कृष्ण जी हिंदुस्तान में वो ऐसे ही थे जैसे कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह की बात को मानते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी भी नमाज पढ़ते थे और श्री कृष्ण जी मुसलमान थे और श्री कृष्ण जी के जितने भी अनुयायी गण थे, जितने भी मानने वाले मुत्तबईन थे, वो सब के सब मुसलमान थे। उनके कान खड़े हो गए, आप लोग क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हाँ, मैं वही कह रहा हूँ जो कि मेरे महाराज ने कहा, मैं वही कह रहा हूँ जो कि श्री भागवत गीता ने कहा, मैं वही कहता हूँ जो कि श्री कृष्ण जी ने कहा। श्री कृष्ण जी ने क्या कहा? श्री कृष्ण जी की तालीम में गीता, जिसमें के 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक 18 अध्याय हैं, 18 अध्याय। और ये 700 श्लोक को पढ़ने के बाद में कहीं पर भी श्री कृष्ण जी की तालीम में ये नहीं मिलता है कि मैं भगवान हूँ, मैं खुदा हूँ और मैं अल्लाह का बरगजीदा ऐसा बंदा हूँ जिसके अंदर में अल्लाह की रूह हुलूल कर गई है। कहीं पर भी श्री कृष्ण जी ने ऐसा नहीं कहा अपने आप को कि तुम मेरे आगे सजदा कर लो, मेरी मान लो। नहीं, श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राण शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। उसी के शरण में चले जाओ, उसी की पनाह में चले जाओ, हर तरफ से कट करके ऐ अर्जुन, उसी की पनाह में चले जाओ, हर तरफ से कट करके ऐ अर्जुन। उसी की कृपा से, उसी की मेहरबानी से तुमको हमेशा हमेश रहने वाला शाश्वत धाम प्राप्त होगा, यानी हमेशा हमेश रहने वाली जगह मिलेगी, जिसके बारे में श्री कृष्ण श्री तुलसीदास जी ने कहा था, काशी करवत बाध है सब काम, बेकुंठ वासना पहियो बिना मोहम्मद नाम। मेरे भाइयों, वो गीता और वो मनु संहिता जिसको लेकर के आज की तारीख में बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लगा हुआ है। ये हिंदुस्तान की हुकूमत चाहती है कि हर मदरसे में, हिंदुस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि हर मदरसे में वो गीता दाखिल हो जाए, हर मदरसे में मनुस्मृति दाखिल हो जाए, मनु संहिता दाखिल हो जाए। तो मैं उन तमाम लोगों से, उन तमाम शर्पसंद अनासिर से मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं कि रहती दुनिया तक, कयामत की सुबह तक, अगर तुम चाहोगे, अगर चाहे इसमें कोई भी शिर्क की तालीम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस गीता को तुम मदरसे में दाखिल नहीं कर सकते हो और ना ही कर पाओगे। उसकी वजह यह है कि कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अबदी और लाजवाल किताब बना कुरान पाक को कहा है। कुरान पाक में जो बातें हैं वो अल्लाह का कलाम है। अगर चलेगा तो अल्लाह का कलाम चलेगा, अगर चलेगा तो अल्लाह का रास्ता चलेगा
اور دوسرا کلام نہیں چلے گا، دوسرا گرنتھ نہیں چلے گا، دوسرا صحیفہ نہیں چلے گا۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیوں بھائی کیوں نہیں چلے گا، ہم یہ کہیں گے کہ قرآن پاک میں جتنی بھی آیتیں ہیں جو آج سے 1500 سال پہلے اتری، وہ تمام کی تمام تر آیتوں میں ایک نقطے کا بھی کوئی فرق آج تک نہ پیدا کیا، نہ کر سکا اور نہ قیامت تک کر پائے گا۔ منوسمرتی پر لکھا گیا وہ انسانی سنویدھان ہے، خدائی سنویدھان ہے، اور کوئی الہی سنویدھان نہیں، الہی قانون نہیں، نظام الہی نہیں ہے یہ۔ لیکن وہ گیتا جس کو تم مدرسوں میں داخل کرنے کی بات کرتے ہو، جس کو تم اسکولوں میں داخل کرنے کی بات کرتے ہو، اور کلام پاک کو ہٹا کر کے اس کتاب کو داخل کرنا چاہتے ہو، جیسا کہ آسام کی حکومت نے کیا، ایک ہی منٹ میں ایک قانون کی بنیاد پر تمام تر مدرسوں سے قرآن پاک کو ہٹا دیا گیا، تمام تر مدرسوں سے اسلامی سلیبس کو ہٹا دیا گیا۔ یہ اس لیے میرے بھائیوں، اس کتاب کو تم ہٹا نہیں سکتے ہو۔ آج ایک مدرسے سے ہٹا دو گے، لیکن دوسرے مدرسے میں داخل اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ الہی کتاب نہیں ہے، یہ قانون الہی نہیں ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں آج تک کوئی بھی گڑبڑی نہیں ہوئی۔ جتنی آیتیں آج سے 1500 سال پہلے تھی آج بھی ہیں، لیکن گیتا کے ساتھ میں ایسا نہیں ہے۔ گیتا میں تبدیلی ہوئی، گیتا میں تحریف ہوئی، گیتا کو بدلا گیا۔ آج کی تاریخ میں جس گیتا کو ہم اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اس میں 700 شلوک ہیں، قرآن کو اٹھا کر دیکھتے ہیں 6666 آیتیں ہیں، 15 سال پہلے تھی اور آج بھی ہیں، لیکن گیتا میں نہیں ہے۔ 700 شلوک اس میں آج ہے، لیکن گیتا میں 745 شلوک تھا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ 45 شلوک کیا ہوئے؟ تم نے کس کو گھٹایا، کس کو بڑھایا؟ شب شتانی سب انشانی اشلوکا نام پراہ پیشوہ اور جنن سپت 50 سپت षष्ठी संजीयः धृतराष्ट्र श्लोकान्वितं गीतायान मान मुझते महाभारत कहता है। महाभारत 1 पर में ये बात लिखी हुई है कि 745 श्लोक थे। सवाल ये होता है कि जिस गीता को तुम अल्लाह की किताब समझ करके इसको दाखिल करना चाहते हो, ईश्वरीय संविधान की सूरत में दाखिल करना चाहते हो, वो गीता के 745 श्लोक में सिर्फ 700 श्लोक हैं। 45 श्लोक क्या हुए? उनके पास आज तक कोई भी जवाब नहीं है, उनका कोई भी जवाब नहीं है और कयामत की सुबह तक कोई जवाब नहीं मिलेगा। इसलिए अगर इस धरती पर कोई सिक्का चलेगा तो वो सिक्का चलेगा जो खोटा नहीं है, जो जंग आलूद नहीं है, जो हमेशा नया का नया रहता है, जिसमें कोई भी कदामत नहीं, कभी वो पुराना नहीं हो सकता है। वो पुराना होगा भी कैसे? ये मदरसा है, इसमें हिफ्ज की तालीम होती है। आपके आसपास में बहुत सारे मदरसे हैं जिसमें कि हिफ्ज की तालीम होती है। कुरान पाक को हमारा एक छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा और मोजज़ाती तौर पर 8-8 साल के बच्चे ने पूरे कुरान पाक को 3,23,271 हुरूफ को कंटेस्ट कर लिया, जुबानी याद कर लिया। लेकिन पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसको कि पूरा का पूरा वेद, जिसमें कि 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,552 मंत्र हैं पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में और अररिया जिलाई में या कहीं पर भी ले लीजिए, कोई एक आदमी, कोई एक पंडित, कोई एक पुरोहित, कोई एक महाराज, कोई एक पुजारी और कोई भी एक वेद का ज्ञाता ऐसा नहीं है जिसको कि पूरा का पूरा वेद कंठस्थ याद हो। यह चैलेंज है मुसव्विर आलम नदवी का, नहीं ला सकता है, कयामत की सुबह तक नहीं ला सकता है। इसलिए कि इस किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने नहीं ली है, वेदों की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने नहीं ली है, तौरात की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने नहीं ली है, इंजील की हिफाजत की जिम्मेदारी खुदा ने नहीं ली है। अगर ली है तो कुरान मुकद्दस की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, सिर्फ कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है और उसके अलावा किसी भी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है। इसलिए एक 8 साल का बच्चा
جب وہ کسی بڑے سے بڑے عالم کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور وہ عالم حافظ اگر وہ ایک آیت بھی غلط بولتا ہے، پیچھے سے 8 سال کا بچہ 10 سال کا بچہ اس کو لقمہ دیتا ہے، اے حافظ تو غلط پڑھتا ہے، اے عالم، اے مولانا صاحب، چاہے وہ کتنا بڑا قابل عالم دین کیوں نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ اس کو ٹوک دیتا ہے، اس کو لقمہ دیتا ہے، آپ غلط پڑھتے ہیں، ایک قدم بھی ایک حرف بھی کوئی غلط پڑھ کر کے جا نہیں سکتا ہے، لیکن دوسرے مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ان الدین عند اللہ اسلام ایک ایسا معجزہ ہے، ہر نبی اپنے معجزے کے ساتھ دفن ہو گیا، لیکن اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معجزے کے ساتھ قیامت تک زندہ ہیں۔ اور جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں ہم کو نبی کی زندگی کا احساس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے جب ہم حدیث پاک کو پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کانما نبی یتکلم، جب ہم حدیث پڑھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی نبی بات کر رہا ہے۔ جب ایک عالم قرآن پاک کو پڑھتا ہے کہا جاتا ہے کہ نبی تو چلے گئے لیکن اس کا وارث یہاں پر عالم دین زندہ ہے، اس کا وارث آپ سب موجود ہیں جو نبی کی کتاب کو لے کر کے، نبی کی حدیث کو لے کر کے ہم غیر مسلم بھائیوں تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کو حقانیت پر لا سکتے ہیں، اس کو بتا سکتے ہیں۔ اسلام مذہب برحق ہے، اسلام وہ دین ہے جس کو قبول کر کے تمہیں مفتی ملے گی، تمہیں نجات ملے گی، تمہیں ہر طرح سے مغفرت مل جائے گی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اگر کوئی بھی آدمی اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ ہم پڑھتے ہیں، مسلمان پڑھتے ہیں، نبی کا وارث پڑھتا ہے، علماء دین پڑھتے ہیں، نبی کے جانشین پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں صرف معلوم ہے، لیکن ہمیں دوسرے بھائیوں کو نہیں معلوم ہے، ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو 5 وقت کی اذان ہے، ہم لوگ جو اذان دیتے ہیں ہمارے ان غیر مسلم بھائیوں کو اب تک یہ نہیں معلوم کہ یہ اذان کیوں دی جاتی ہے۔ جب ان کو نہیں معلوم کہ اذان کیوں دی جاتی ہے تو اذان پر آبجیکشن ہوتا ہے، اذان پر اعتراض ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو سننا گوارا کر لیتے ہیں، چونکہ اذان کی حقانیت اس کو نہیں معلوم ہے اس لیے وہ آبجیکشن کرتا ہے۔ اب تک ہمارے غیر مسلم بھائی یہ بولتے چلے آ رہے ہیں کہ اس میں مسلمان یہ 5 وقت اکبر بادشاہ کا نام لیتا ہے۔ اب بتائیے، اکبر بادشاہ کا نام ہم لوگ لیتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی نے اس کو ٹرین پر ملے، میں نے کہا کہ بھائی یہ اکبر بادشاہ کا نام نہیں ہے، تم کو معلوم نہیں ہے؟ کہا کہ پھر کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی وہی بات، صرف زبان کا فرق ہے، اگر آپ اس کو جان لیں تو آپ بھی اذان دینا شروع کر دیجئے گا۔ میں نے اسلام کے بارے میں کچھ باتیں کی، میں نے کہا کہ دیکھیے اللہ اکبر کہتا ہے اور اللہ اکبر کا ہوتا ہے ایشور سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، برہما از دا گریٹسٹ گاڈ، برہما از دا گریٹسٹ گاڈ، خدا سب سے بڑا ہے۔ برہما کس کو کہا گیا ہے؟ خدا جو سب سے بڑا ہو اس کو برہم کہا گیا، اور جو اس برہم کو جاننے والا ہے اس کو برہمن کہا گیا۔ یعنی جو خدا کو جاننے والا ہے، خدا کو سمجھنے والا ہے اور خدا کی کتاب کو سمجھنے والا ہے، خدا کا پنج سمجھنے والا ہے، اللہ کا طریقہ جانتا ہے، اللہ کا حکم جانتا ہے، وہی براہمن ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی براہمن نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ جاتی پوجتے راجن برا کلیان کارکا چندان پیتستھن تن دیوا براہمن بدو، نہ جاتی پوجتے راجن، کیا کسی براہمن کے گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی آدمی براہمن ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ آدمی کبھی بھی براہمن نہیں ہو سکتا ہے۔ بدھ گوتم سنہتا کا شلوک ہے، کوئی پشتری طور پر پیدا ہوتا ہے، بابل کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، پھر بھی وہ براہمن نہیں ہے۔ براہمن کس کو کہا گیا ہے؟ نہ جاتی پوجتے راجن برا کلیان کارکا چنڈال پی وتستھن تن دیوا براہمن بدو، جات پات کی بنیاد پر، ذات کی بنیاد پر کسی کی پوجا، کسی کی خدمت نہیں ہوتی ہے۔ چنڈال پی وتستھن تن دیوا براہمن بدو، اگر کوئی چنڈال، کوئی شودر اور نچلے ذات کے آدمی میں بھی اگر یہ براہمن کے گن پیدا ہو جائے، اللہ کو ماننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو دیووں نے، فرشتوں نے، دانشوروں نے اسے بھی براہمن کہا ہے۔ یہ جو ہم لوگ بولتے ہیں یہ پنڈت کس کو کہتے ہیں؟ پنڈت کا مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے تلک لگا لیا، ہاتھ میں لوٹا لے لیا، ایک ہاتھ میں ترشول لے لیا اور کسی مندر میں جا کر کے بیٹھ گیا اور وہ پنڈت ہو گیا۔ نہیں، شاعر نے پنڈت اس کو نہیں کہا ہے۔ پنڈت کون ہے؟ ماتری
मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति सब पंडिता। मातृवत परदा, पंडित किसको कहते हैं? ब्राह्मण किसको कहते हैं? ब्राह्मण जो हक शनास हो, जो आरिफ बिल्लाह हो, खुदा को पहचानने वाला हो, ईश्वर को पहचानने वाला हो, वो ब्राह्मण हुआ। और जो पूरी दुनिया की औरतों को अपनी माँ के समान समझे, माँ की तरह उसको तकद्दुस का दर्जा दे, माँ का दर्जा दे वो। और मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत, और दूसरों के धन को ढेला समझे, और जो अपने लिए वही चाहे जो अपने लिए अपने भाइयों के लिए चाहता है, जो अपने लिए चाहे वही अपने भाइयों के लिए चाहे। अगर ये तीन सिफत, ये तीन गुण किसी के अंदर है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्म सर्वभूतेषु यह पश्यति सब पंडिता, अपनी तरह सबको समझे। अब खुद गुनहगार है तो वो अपने गुनाह को ला करके दूसरों को मासूम समझे, और दूसरे इंसानों के लिए वही चाहे जो अपने लिए चाहता है, उसी को पंडित कहा गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखी मा युहिब्बु लिनफ्सिही। तुम में से कोई भी आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक के अपने भाई के लिए वही न चाहे जो अपने लिए चाहता है। अगर ये चाहत उसके पास है, वो मोमिन भी है, वो पंडित भी है, वो ब्राह्मण भी है, अल्लाह की नजर में वो महबूब भी है, अगर ये सिफत उसके अंदर नहीं है, चाहे वो मुसलमान के घर में पैदा हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु वल्लाहि ला युमिनु। 3 बार कसम खाई, खुदा पाक की कसम, वो ईमान वाला नहीं हो सकता, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। अल्लाह की कसम, वो ईमान वाला नहीं हो सकता। पूछा गया कौन है अल्लाह के नबी? आपने फरमाया, मन ला युमिनु जारुहु बवाइक़हु, जिस आदमी का पड़ोसी उसकी तकलीफ से, उसके दुख से, उसकी पीड़ा से, उसकी जुबान से, उसके हाथ से, उसके पैर से महफूज ना हो, वो आदमी मुसलमान नहीं है। खुदा की कसम वो मुसलमान नहीं है, खुदा की कसम वो मोमिन नहीं है, खुदा की कसम वो ईमान वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए, अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी है मेरे भाई, हम उस पर अमल करने वाले बन जाएं, और अल्लाह का जो पैगाम हमको मिला है उस पैगाम को हमारे दूसरे भाइयों तक पहुंचाने वाले हम बन जाएं। आखिर में एक हदीस मैं आपके सामने में पेश करता हूँ। जितने भी पढ़े लिखे भाई हो, जिसने भी कुरान पाक को अगर एक बार भी पढ़ा है, मैं उन तमाम लोगों को यह हदीस सुना देना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी का यह पैगाम आप तमाम लोगों को सुना देना चाहता हूँ, और सुन करके उठिएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रा अल कुरान वअंसा, मन क़रा अल कुरान सुम्मा अंसा लक़ी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यौमल क़ियामति व हुवा अज़्ज़म। जिसने कुरान पाक को पढ़ा, जिसने कुरान को पढ़ा, पवित्र कुरान का जिसने अध्ययन कर लिया, चाहे वो नाजरा ही क्यों ना हो, मन क़रा अल कुरान, जिसने कुरान को पढ़ा, फिर मुसलमान सा, फिर वो उसको भुला दिया, पसे पुष्ट डाल दिया, ताक पर रख करके वो भूल गया कि अल्लाह का पैगाम मेरे पास मौजूद है, मेरे घर में मौजूद है, उसको वो भूल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची जुबान कहती है, लक़ी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल यौमल क़ियामति व हुवा अज़्ज़म। कल वो क़यामत के दिन खुदा से इस हाल में मिलेगा कि उसके पूरे बदन में कोड़ पैदा हो चुका होगा, कोड़ का मर्ज़ पैदा हो चुका होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। एक हदीस जो मैंने शुरू में पढ़ी थी, वो हदीस का तर्जुमा और थोड़ी सी तशरीह करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरबउन हक़्क़ुन अलल्लाह अल्ला युदखिलहुम अल जन्नह वला युज़ीक़हुम नईमहा। 4 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया। अल्लाह के नबी की सच्ची जुबान कहती है, अरबउन हक़्क़ुन अलल्लाह, 4 आदमी हैं, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि वो उसको कल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। वो 4 आदमी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हक़्क़ुन अल्लाह है, अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि कल क़यामत के दिन उसको ना जन्नत में दाखिल करेगा और ना ही उसको जन्नत का मज़ा चखाएगा। वो कौन लोग हैं? मुदमिनुल खम्रिन,
शराब का आदि आदमी, नशे का आदि आदमी, नशा चाहे जो भी हो, कुल्लु मा अस्कर कलीलुहु फकसीरुहु सवाउन, हर वो चीज़ चाहे वो थोड़ी हो चाहे वो ज़्यादा हो, अगर वो उसमें नशा है, नशा कर देती है वो चीज़, तो वो हराम है, हराम है, हराम है, हराम है। चाहे वो इंजेक्शन की शक्ल में हो, चाहे वो टेबलेट की शक्ल में हो, चाहे वो दवाई की शक्ल में हो, ये आदमी जो नशे का आदि है, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी की सच्ची जुबान ने कहा कि ना उसको जन्नत में दाखिल करेगा अल्लाह मियां, और ना ही जन्नत का मजा उसको छकाएगा। पहला तो ये आदमी। दूसरा आदमी आकिलुर रिबा, ये सूद खाने वाला आदमी, ये जो सूद खाता है, सूद की कई शक्लें हमारे समाज में आ गई हैं। पहले ज़माने में पूरे मोहल्ले में अगर एक भी आदमी सूदखोर होता था तो तमाम लोगों को मालूम होता था कि वो आदमी सूद खाता है। और ये भी कहावत मशहूर थी कि अगर किसी के घर में खटमल पैदा हो जाए तो 7 सूदखोर का नाम, 7 सूदखार का नाम आप कागज़ में लिख करके पलंग के चारों पाए में बांध दीजिए, खटमल खत्म। लेकिन आज की तारीख में किसी के घर में खटमल है? पता ये चला हर घर में सूदखोर मौजूद है, हर आदमी सूद खाता है, लेकिन इसको पता नहीं कि हम सूद किस शक्ल में खा रहे हैं। नहीं मालूम है, नहीं मालूम है इसको हम सूद किस शक्ल में खा रहे हैं। ये हमारे गांव समाज में ये जो बंधन बैंक योजना लागू है, ये जो औरतें लेकर के इसको चलती है, 8-10 औरतें होती हैं, एक औरत उसमें मुखिया और सरदार होती है, और वो तमाम औरतों को उसमें जोड़ती है। हफ्तावारी उसको पैसा दिया जाता है, महीने में कभी 10,000 रुपये उसके नाम पर निकाले जाते हैं, और अगले महीने तारीख बंदी भी होती है, हर कुछ छूट जाए, लेकिन तारीख पर जो मुकर्ररा तारीख है, उस तारीख पर रकम जमा करना हर हाल में जरूरी होता है। भाई वो जमा करती है वो औरत। ये जो घरों में चलने वाला ये जो सूदी निज़ाम है, और हमारा जो पैसा बैंक में होता है बढ़ करके हमको मिलता है, फिक्स डिपॉजिट करता है, और हर आदमी का ये जो 15 लाख के चक्कर में हर आदमी का अकाउंट खोल दिया, वहाँ पर हर महीने में पैसा आपके अकाउंट में डाला जाता है। अगर 1,000 डाला गया, 5 महीने के बाद में आपको 1,100 रुपये मिलते हैं। 100 रुपये जो बढ़ करके मिला वो सूद का हुआ। अगर हमने खाया मेरे भाइयों तो हमने सूद खाया, और ये सूद खाना हराम, सूद लेना देना, सूद लेना हराम, सूद देना हराम, सूद को लिखना पढ़ना, सूद का कारोबार करना, सूद की दलाली करना, सूद की एजेंसी चलाना, सूद के लिए बीच में किसी को एजेंट बनाना, किसी का एजेंट बनना, ये सब के सब हराम है। आज 27 रजब है, कल जो रात गुजरी वो शब मेराज थी, यानी मेराज वाली रात थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के सफर में देखा एक आदमी का पेट इतना बड़ा है और उसका पेट फट रहा है। कोई बहुत बड़ा बड़ा कोबरा से बढ़ करके बड़ा बड़ा नाग, बड़ा बड़ा सांप उसमें दाखिल होता है, बिच्छू उसके पेट में दाखिल होता है, और वो निकल रहा, पेट बिल्कुल फटा पड़ा है। जिब्राइल अमीन से पूछा ये कौन है? जिब्राइल अमीन ने कहा कि ये आपकी उम्मत का सूदखोर इंसान है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तीसरा वो आदमी जिसके बारे में आपने फरमाया कि अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि वो उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, वो आदमी है यतीम के माल को हड़प कर लेने वाला, यतीम की जमीन जायदाद उसके पैसों पर कब्जा कर लेने वाला यतीम है। हम लोग उसको कहते हैं टूवर है, सुअर है, ऐसा बोल देते हैं। अरे भाई, बाप का साया बचपन में उठ गया, अब तो आपका दस्ते शफकत उस पर पड़ना चाहिए। यतीम के सर पर जितने बाल हैं, अगर कोई आदमी उस पर अपना दस्ते शफकत फेरता है, उसके सरों पर फेरता है, तो उनके सर पर जितने भी बाल हैं, बालों के बराबर उसको नेकी नहीं दी जाती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत उसकी तरफ मुतवज्जो होती है। चौथा वो आदमी जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि अल्लाह उसको कभी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा और न ही उसका मजा चखाएगा। चौथा कौन आदमी? वल आक़िल वालिदैन, जो अपने माँ बाप का बाइकाट करता है, खुद पेट भर करके खाता है, लेकिन उसको तौफीक नहीं होती है कि घर में जो कुछ भी बना है अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत में ले जा करके पहुंचा दें। जो कुछ लाता है मार्केट से ऐसे छुप करके दाखिल होता है कि उसकी बीवी के सिवा कोई भी ना समझे इसको। माँ बाप से रिश्ता काट कर रहने वाला, बीवी का गुलाम, जोड़ी का गुलाम बनकर रहने वाला,
बाप बेचारा बैठा हुआ है, बाप बेचारा सुन्नती भी है, तबलीगी भी है, और उनके चेहरे पर नूर सुन्नत सजा हुआ है, वहां पर वो बैठा हुआ है, माँ बैठी हुई है, कोई नेता आता है, उसके लिए वो कहता है, तपाक के साथ मिलता है और वो कहता है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वो उसके गले मिलता है। अगर 4 बार मिलेगा गांव का मुखिया, 4 बार मिलेगा प्रमुख, 4 बार मिलेगा एक ही घंटे में, अगर वहां का MP MLA वो उस पर 4 बार सलाम करेगा, 10 बार सलाम करेगा, लेकिन उसके होठ अपने माँ बाप को सलाम करने के लिए नहीं फटते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो आदमी जन्नत में नहीं जाएगा। हमारे महाराज जी कहा करते थे कि देखो ये जो माँ बाप है ना, ये एक सायेदार दरख्त की मानिंद है, अगर तुम इससे जुड़े रहोगे तो तुम खुशहाल रहोगे। अगर दरख्त में अगर सलाहियत है नमो की, दरख्त हरा भरा है, उसकी डंडी भी हरी भरी रहेगी। कब? जब डंडी उस पर जुड़ी रहेगी, लेकिन अगर उस दरख्त को काट दीजिए तो जड़ तो नीचे सलामत रहेगी, लेकिन उसकी डंडी सूख जाएगी, वो पत्ता सूख जाएगा। माँ बाप से रिश्ता काट करके बिछड़ कर रहने वाली औलाद कभी भी हरी भरी नहीं रह सकती है। अगर अपने आप को मालदार देखना चाहते हो, अगर अपने आप को खुशहाल देखना चाहते हो, अगर अपने आप को सादतमंद बेटा बनाना चाहते हो, तो माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ बाप के मुंह में जब लुक़मा पहुंचेगा, तुम्हारे घर में अल्लाह कई करोड़ गुना लुक़मा उससे ज्यादा पहुंचा देगा। माँ बाप के मुंह में लुक़मा पहुंचने से पहले तुम्हारे लिए रोजी का रास्ता खुल जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो हम लोग हज करने के लिए जाते हैं, इसमें कोई गारंटी है कि किसी का हज कबूल हो गया, वहां से वो वापस आया और उसका हज कबूल हो गया? कोई ये गारंटी लेगा कि हम हज करके आए और हमारा हज कबूल हो गया, हमको मकबूल हज का सवाब मिला? कोई गारंटी ले सकता है इस चीज को? कोई भी गारंटी के साथ कह सकता है? नहीं कह सकता है कोई भी आदमी गारंटी के साथ में। लेकिन हाँ, अल्लाह के नबी ने एक हज की गारंटी ली है, और वो आदमी मक्का भी नहीं गया, मदीना भी नहीं गया, हजर अस्वद का बोसा भी नहीं लिया, तवाफ़ काबा भी नहीं किया, लेकिन अगर वो दिल में एक बार अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी नजरों से देख लिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया हज और मकबूल कबूल किया हुआ हज और उम्रे का सवाब उस औलाद को मिलेगा। हज करके आए, हमारे हज की कोई गारंटी नहीं, लेकिन नबी ने जमानत ली, नबी ने गारंटी ली। अगर तुम एक बार भी अपने माँ बाप को मोहब्बत भरी नजरों से देख लोगे तो तुमको हज मकबूल का सवाब मिलेगा। और ये माँ बाप की सेवा, माँ बाप की खिदमत ना सिर्फ ये कि हमारे मजहब में है, माता देवो भव पिता देवो भव, माँ को देवता कहा है और बाप को देव कहा है। अगर हम इसकी खिदमत कर लेंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा, हमको हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा, हमारी दुनिया भी जन्नत बन जाएगी मेरे भाइयों, और मरने के बाद तो जन्नत है ही। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ फरमाइए हमने जो कुछ सुना उस पर अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमा, और जो कुछ हमने सुना अल्लाह से इस बात की भी दुआ कीजिए हम उम्मत दावत हैं, इस दावत को हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को जरूर पहुंचा देंगे। हमारे जितने गैर मुस्लिम दोस्त हैं हम कम से कम उसको हिंदी वाला कुरान कहेंगे भाई तू पढ़, मैं तो सही से मुसलमान नहीं हो सका लेकिन तू पढ़ ले, हो सकता है कि तू पक्का सच्चा मुसलमान बन जा और तू मेरे लिए जरिए मग़फ़िरत बन जाए। अल्लाह से दुआ फरमाइए अल्लाह हमें इस काम को करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।